Hare Krishna. Welcome you all in a congregation of Srimad Bhagavatam. We shall be reciting from 4th canto, chapter 9, and text is 46 onwards. Lil Mangalacharan. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanaranja Yashodanandana Brajajanaranja Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanaranja Yashodanandana Brajajanaranja Yamuna Tera Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya
Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Srila Prabhupada Jaya, Gurudeva Jaya Gurudeva, Gurudeva Jaya Gurudeva. हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रबंध महाराज जय। निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे गौर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So welcome again on Srimad Bhagavatam, the best means of conquest from the material miseries. Let us get into text 46. I don't want to go to the background because we have been hearing for the last of many days. It says, Suruchistam samuthapya padavanatab Parishvajyaha jiveta Bapsa gadgadaya gira Suruchistam samuthapya Padavanatam arvakam Parishvajyaha jiveta Bapsa gadgadaya gira Suruchistam samuthapya Padavanatam arvakam Parishvajaha jiveta Bapsa gadgadaya gira. Synonym will go Suruchi, Queen Suruchi, tam him, samuthyapya, having picked up, pada avantanam, fallen at her feet, arvakam, the innocent boy, parishvajya, embracing, aha, she said, jiva, may you live long, iti, thus, Baspa, with tears, gadgadaya, choked up, gira, with words. Now, translation and purport by His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Suruchi, the younger mother of Dhruva Maharaj, seeing that the innocent boy had fallen at her feet, immediately picked him up, embracing him with her hands and with tears of feeling, she blessed him with the words, my dear boy, long may you live. So let's go to text 47. If there is a purport in that, yeah, there is a purport, then we'll take them together. Yasya prasanno bhagavan gunair maitrya devirharihi tasmai namanti bhutani nimnamapayava swayam. I'll go direct to the translation. Unto one who has transcendental qualities due to friendly behavior with the Supreme Personality Godhead, all living entities offer honor, just as water automatically flows down by the nature. Om Jnana Timiranda se Jnananjan Salakaya Chakshuntam Enam Tasmai Sri Guruve Nama Sri Chaitanya Manovishnama Sthapitam Ena Bhutale Swayam Rupakada Mayam Dadati Supadantikam Bandeyam Sri Guru Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Sri Rupam Sagarajam Sagana Ramanathan Pitanam Sajivam Sadhvetam Savadutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Balan Sagana Lalita Sri Vishakhan cha He Krishna Karuna Sindhu Deen Bandhu Jagatpati Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapti Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavani Vishvanushte Devi Pranamami Hari Priye Vangsha Kalpataru Vesha Kripa Sindhu Vacha Patidana Mapavani Vyo Vaishnavevyo Namo Nama Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमते जयपता कात्मानिति नामने नमः आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायने गौरकसादामदाय नगर ग्रंथाने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय शिला प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की अनुकंपा से वैष्णव जन और गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप सबके सौजन्य से कृष्ण कथा निर्मल बह रही है। आइए प्रपोर्ट देखते हैं शिला प्रभुपाद जी का। The question may be raised in this connection, why Suruji, who was not at all favorably disposed toward Durga, blessed him, long may you live, which means that she also desired good fortune for him. The answer is given in this verse. Since Dhruva Maharaja was blessed by the Lord, due to his transcendental qualities, everyone was bound to offer him all respects with the benediction, just as water, by its nature, flows downwards. A devotee of the Lord does not demand respect from anyone, but wherever he goes, he is honored by everyone throughout the whole world with all respects. Srinivasa Acharya said that the 6 Goswamis of Vrindavan are respected throughout the entire universe because a devotee, having pleased the Supreme Person of Godhead, the source of all emanations, automatically pleases everyone, and thus everyone offer him respects. Beautiful. Now today I did not break it, I will take direct. Let me take the first sloka. It says, Suruchi, the younger mother of Dhruva Maharaja, seeing that the innocent boy had fallen out of it. देखिए ध्रुव महाराज जब अपने घर से निकले तो सुरुचि ने उनको विलस नहीं किया, राधा सुरुचि ने उनको इग्नोर किया। और आज वही सुरुचि उसको बेनेडिक्शन दे रही है। इसके 2 कारण हैं। सबसे पहले कि उसने नारद से ध्रुव महाराज के बारे में सुना तो क्या किया? श्रवण। जो भी एनोमलीज हमारे दिल में होती है सुनने के पश्चात समाप्त हो जाती हैं। अगर कोई वैष्णव जन से हम कुछ सुने तो जब ध्रुव महाराज के बारे में उत्थानपाद को नारद मुनि बता रहे थे तो सुरुचि ने भी सुना। डायरेक्ट वहां खड़ी नहीं थी लेकिन उसने सुना। और जैसे उसने सुना कि ध्रुव महाराज ने वो अचीव कर लिया है तो उसके जो थे हृदय के सारे जो वैमनस्य थे सारे समाप्त हो गए। दूसरे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्त जो है अनायास ही उसको जो है ऑनर मिलना शुरू हो जाता है। क्यों? ठीक है, ध्रुव महाराज आए उसके पैरों में गिरे, यानी ध्रुव महाराज के दिल में उसके प्रति कोई वैमनस्यता नहीं थी। और अगर कहें अगर मां सुरुचि नहीं होती तो आज ध्रुव नहीं होते और आज हम की कथा नहीं सुन रहे होते। तो सुरुचि का उनके जीवन में बहुत बड़ा रोल है। इसलिए अनायास ही हमारे ध्रुव जो हैं उनके पैरों में गिरे। और क्योंकि सुरुचि को मालूम हो गया ये कौन है तो उसने कहा माय डियर बॉय, नाउ बॉय इज डियर। पहले क्या था कि अगर मेरे कोख से जन्म लोगे तभी तुम्हारे कोई ऑनर होगा, तभी तुम जो है उत्तानपाद के अंक में बैठ पाओगे। लेकिन आज कह रहे हैं माय डियर बॉय लॉन्ग मे यू लिव। ये सारी जो परिवर्तन हुआ ये सुनने से हुआ। और उनका जो ध्रुव महाराज का जो व्यवहार था, पैर माता के पैरों में गिरे तो उसने उनको उठा लिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब जो भगवान का भक्त हो जाता है उसमें ट्रांसेंडेंटल बिहेवियर आ जाते हैं।
जैसे कल माता जी कह रही अविष्ट सर्वभूतानाम। और तितिक्षः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रु साधव साधव साधुभूषणम। साधु के भूषण क्या है? अजात शत्रु, किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है। तितिक्षव, वो बहुत टॉलरेट करता है, यानी वो समझता है कि टॉलरेट क्या है कि व्हाट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, सो व्हाई शुड आई बी बॉदर्ड। कारुणिकाः, और उसके अंदर कंपैशन जाग जाता है, सबके अंदर करुणा है। क्या करुणा है कि काश ये भी भौतिक संसार में लिप्त होकर अपना जीवन समाप्त न करो। सर्वदेह नाम, खाली मनुष्य जाति के लिए नहीं, इवन अन्य जातियों के लिए, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, पेड़ हो, पौधे हो, सबके लिए सर्वदेहानम अजात शत्रु शांत वह, और वो हमेशा शांत रहता है। शांत एक्टिविटी में भी और मन में भी। अब देख लीजिए, ये साधु के भूषण है, ये आभूषण है। अब ये इसकी श्रीमद् भागवतम है, ये आईना है। अगर हम अपने आप को आईने में देखें तो हमारे चेहरे में जो धूल हो, जो गंदगी हो, हम उसको साफ करते हैं। या हमारे कपड़े अच्छे ना हो, हम उनको तो बदल देते हैं या उनको साफ कर देते हैं। तो श्रीमद् भागवतम आईना है हमारे जीवन का। सुरुचि जैसी जो औरत थी, उसका हृदय भी परिवर्तन हो गया, क्योंकि उसने ध्रुव महाराज को देखा। ध्रुव महाराज में जो आभा थी, जो उनके चेहरे पे जो रौनक था, कौन उनको प्यार नहीं करेगा। और इस प्रकार ये कहा जाता है कि भक्त लोग सारी दुनिया में आदरणीय होते हैं, अनायास ही उनको ऑनर मिल जाता है। हमारे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, उनको कौन पहचानता था? कौन से उनके वहां रिश्तेदार थे? कौन से लोगों ने कहा ये ऐसा आदमी है? नहीं, उनकी वाणी के द्वारा जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया तो लोगों को पता चला दिस वॉइस इज ऑफ डिविनिटी, divine person has come to say something which is pleasing the heart of everybody. How is it possible? जिससे बात करें उनका हृदय द्रवित हो जाए और उनसे और जानने और सुनने की जो है इच्छा करें। तो सुरुचि के पास इस बात कुछ नहीं था आशीर्वाद के अलावा, और इसलिए उसने आशीर्वाद दिया, मे यू लिव लॉन्ग। और उसकी बात भी सत्य हुई ना, 36,000 साल तक ध्रुव महाराज ने भगवान वो राज्य नहीं किया, भगवान की आज्ञा का पालन किया। ये समझ लीजिए, उन्होंने राज्य नहीं किया, भगवान की आज्ञा का पालन किया। ठीक इसी प्रकार अगर हम भी अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें तो हमको भी जो ऑनर, जिस ऑनर के लिए मर रहे हैं ना, वो ऑनर ऑटोमेटिकली मिलेगा, ऑटोमेटिकली मिलेगा। आपको मालूम होगा जब कोई वैष्णव आता है तो सब उनकी सेवा करना चाहते हैं, सब उनकी सेवा करना चाहते हैं। क्यों? कि दे हैव बिकम अ डिवाइन पर्सन। तो यहां तो हम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के डिवाइन पर्सन बन जाते हैं। ध्रुव महाराज को इतना भगवान के साक्षात दर्शन हुए और भगवान के कौशल उनके जो सिर में लगा, उनको सारा ज्ञान आ गया। जो ज्ञान हजारों साल की तपस्या के पश्चात भी नहीं मिलता है, ध्रुव महाराज को 6 महीने में मिला। 2 कारण, एक तो अपने गुरु की भक्ति, दूसरे में दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम भक्ति कर सकते हैं। प्रभुपाद ने लिखा है, अनटू
ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, जैसे 26 क्वालिटीज की हम बात करते हैं, अरे उनसे भी ज्यादा ही बिकम वेरी लवेबल टू ऑल। ये हम ऐसे आपको समझा सकते हैं, माने कोई सुंदर से बच्चा हो तो सब उसको प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? यू नो, इज वेरी इनोसेंट, ही डजंट हैव duplicity in his heart, he is very innocent, so everybody wants to play with him, take him in his in their lap, innocent. So devotees are also that innocent, like a child, that everybody wants to get connected. And प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्वेश्चन यहां कह सकते हैं कि सुरुचि ने ध्रुव महाराज को क्यों ब्लेस किया, क्यों ब्लेस किया? प्रभुपाद जी कहते हैं, ध्रुव महाराज was blessed by Lord that due to his transcendental qualities everyone was bound to offer him all respect. राजा खाली अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन जो विद्वान है, जो भक्त है, वो सारी दुनिया में पूजा जाता है। आप प्रभुपाद का एग्जाम्पल हम बार बार देते हैं, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, चाहे कोई फिलंथ्रोपिस्ट हो, चाहे कोई गार्डियन हो, सब प्रभुपाद को सुनना चाहते थे और सुन करके उनको बड़ा आनंद मिलता था। क्यों? बिकॉज प्रभुपाद वाज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, एंड दैट्स द रीजन। डिवोटी, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीनिवास आचार्य ने कहा कि गोस्वामीज ऑफ वृंदावन आर रिस्पेक्टेड फॉर द एंटायर वर्ल्ड बिकॉज हैविंग प्लीज द पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। लेकिन यहाँ हम पर्सनल गॉड हेड को प्लीज करने के लिए हमें वाया मीडिया चाहिए, वाया सोर्स चाहिए, वो है गुरु परंपरा। और तत्पश्चात ऑटोमेटिकली one can please everyone and thus everyone offer respect. तो ये कहानी है भक्तों की। सुरुचि ने श्रवण के द्वारा और आंखों से देखने के द्वारा कि किस प्रकार ध्रुव ने उसके पैरों में गिरे। शायद हो उसका इसका अंदेशा ना हो, क्योंकि उसने तो उसको बेइज्जती कर दी थी, लेकिन शांत हुआ, साधव साधु भूषण। इस प्रकार अगर हम अपने जीवन में शांति लानी हो, अगर अपने जीवन में ठहराव लाना हो, अपने जीवन में वो पाना हो जो बहुत दुर्लभ है, तो तब भगवान की भक्ति कीजिएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म निवेदन। और कम से कम कली के जमाने में जहां सूत गोस्वामी कह रहे हैं, कलो दोषे निधि राजन अस्ति एको महान गुणान कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम परजेत। लेकिन हम घबरा जाते हैं, भगवान की भक्ति करेंगे तो हमसे हमारा घर छूट जाएगा, गाड़ियां छूट जाएंगी, वैभव छूट जाएगा, यार दोस्त छूट जाएंगे, ऐसे भक्ति का क्या फायदा। लेकिन हमें मालूम नहीं है, ये सब त्याग करने के पश्चात जो आनंद हमको मिलेगा, वो आनंद और कहीं मिल भी नहीं सकता है। अब लोग कहें कि भाई अच्छा आप क्यों नहीं छोड़ रहे, जब उसमें आनंद है तो क्यों नहीं छोड़ रहे? हम कह रहे हैं आपको त्यागना नहीं है, अपनी मन स्थिति को बदलना है। ना घर छोड़े, ना बार छोड़े, ना समाज छोड़े, अपनी जो परिस्थिति है, अपने जो मन में जो हमारी तृष्णा है, जो कामना है, जो वासना है, उसका त्याग करना है। पांडवों ने
जब उनकी उम्र 80-80, 90-90 साल की हो गई थी, वो जंगल में नहीं गए। और भगवान कृष्ण जब स्वधाम चले गए, वो जंगल में फिर भी नहीं गए। उसी तक भगवान के पास पहुंचने की उन्होंने युक्ति की। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ में थे, लेकिन अपनी गृहस्थी के लिए सिर्फ 2 घंटे, बाकी सब भगवान के लिए, कुछ ऑफिस को कार्यों के लिए, कुछ जनसेवा के लिए। तो ये नहीं है कि आपको छोड़ना है, मन स्थिति छोड़नी है। और मन स्थिति को छोड़ने के लिए भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, स्वाध्याय, तभी जीवन में ठहराव आएगा। वरना छोटी छोटी चीज में हम खुद लोग परेशान होते चले जाएंगे, और अगर हम परेशान होंगे तो दूसरे जो हमारे से कनेक्टेड हैं वो भी परेशान होंगे। इसलिए दूसरों को परेशानी में डालने के लिए भगवान की भक्ति कीजिए। किस प्रकार? अभ्यास योग युक्तेन चेतसानन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अभ्यास के द्वारा। मालूम है मन नहीं लगता है, फिर भी करना है, अभ्यास के द्वारा। जैसे अर्जुन ने कहा चंचला ही मना कृष्णा, तो भगवान के असम स्वयं महाबाहो, मैं तेरी बात समझता हूं, मानता हूं। क्या मानता हूं? मनो दुर्निग्रहम चलम, कि मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास है ना, तो कौन तेज? अभ्यास तो करो। वैराग्य न गृह्यते, वैराग्य अपने आप आएगा। हम लोग कोशिश नहीं करते हैं, हमारी कोशिश अधभरे मन से है, पूर्ण मन से नहीं है। और इस प्रकार हम वो आनंद नहीं पा रहे हैं जिस आनंद के हम हकदार हैं। शारीरिक परेशानी आएंगी, लेकिन भक्ति के द्वारा उन परेशानियों का पता ही नहीं चलेगा। तो श्रीमद् भागवतम हर समय, हर घड़ी, हर पल हमें आईना दिखा रही है कि तो अपने जीवन को कैसे चलाना है। स्थिति प्रज्ञ का भाषा समाधि सस्य केशव, स्थिति धी किम प्रभासेत किम आसेत वर्जित। आप कितने श्रीमद् भागवतम क्यों न पढ़ लें, जब आप किसी दूसरे से मुखातिब होते हैं या बात करते हैं, आपके मुंह से क्या शब्द निकलते हैं, दैट मेक्स यू अ डिवोटी। अगर आपने पूरी भागवतम पढ़ डाली और अपने आचार व्यवहार में आप ऐसे उल्टी सीधी बातें करते रहे, तो वो इट वॉज ए स्कैनिंग। आपने देखा आपके ऑफिस में स्कैनर होगा, आप किसी भी चीज को स्कैन कर सकते हैं, लेकिन जो स्कैनर है उसको पता नहीं चलेगा स्कैन क्या हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम भागवतम को स्कैन करेंगे, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। उसको जानने के लिए, समझने के लिए उसमें हमें मनन चिंतन करना पड़ेगा, प्रभुपाद जी की वाणी को समझना पड़ेगा। प्रभुपाद जी का हर सेंटेंस में जो है हमें अनुभूति मिलनी चाहिए, अनुभूति मिलती है। और इस प्रकार हम अपने जीवन को सौहार्द लेकर, उत्तम बनाकर भगवान की भक्ति में लिप्त हो सकते हैं। तब हमें न तो मरने की जरूरत है और न ही कहने के अंते नारायण स्मृति होगी कि नहीं होगी। अरे जब हर समय हो रहे तो उस समय क्यों नहीं होगी? हर पल तुम्हारा अंत है ना, जैसे हम इस पे कई चर्चा कर चुके हैं। हर एक पल तुम्हारा अंत है। इसे भगवान ने क्या कहा? सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हर समय मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, तब तुम जो है मेरे पास आओगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आम त्वाम सर्व पापेभ्यो
मोक्ष श्यामी माँ शुचः, माँ शुचः लेकर भगवान ने बोला है, फिक्र मत करो, चिंता मत करो, लेकिन हमें भगवान का सहारा होकर भी हम सब चिंतित हैं। जैसे राधा गोविंद महाराज की कथन एक बार मैंने सुना, लोग कहते हैं चलो भगवान की कृपा से आज तक तो चल गया, कल क्या होगा। तो महाराज कहते हैं क्या कल भगवान लंबी छुट्टी में जा रहे हैं क्या? तो ये मान के चलो हमारे पास भगवान होते हुए भी हम चिंतित हैं। लेकिन भगवान अर्जुन ने क्या कहा, भक्तानाम अभयंकर, ये भगवान तुम भक्तों के दिल में अभय प्रदान करते हो। तो आज अगर आपके दिल में मेरे दिल में भय है, ये मान के चलो हम अभी भक्त बने नहीं हैं। भक्तानाम अभयंकर, छोटी छोटी चीज में हमें परेशान हो जाना, काहे को परेशान होना, छोटी छोटी चीज दिल में लगा लेनी, छोटी छोटी दिल को चीजों को जो बार बार सोचना। अरे सोचना है ना तो भगवान के बारे में सोचिए, कौन मना करता। अगर आपका किसी से कोई मनमुटाव हो गया, आपको झगड़ा करने की तबीयत करे, तो भगवान से झगड़ा करो। भगवान चाहते हैं कोई मुझे मिले में से झगड़ा करने वाला, तो आप तैयार हो जाइए ना। और देखिए जैसे माँ सुरुचि पहले तो बिल्कुल अगेंस्ट थी, अब एकदम फेवरेबल हो गई। ठीक इसी प्रकार जिनको आप अपना दुश्मन समझते हो, अगर भक्त बनोगे तो आपके वो दोस्त बन जाएंगे। तो चाहत होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। क्या चाहत होनी चाहिए कि कैसे भी करके भगवान के भक्तों के साथ हमारा समय निकले, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमें चाहिए, हमें पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, तो इसके साथ साथ हमें जो है परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। अगर आप परेशानी से बचना चाहते हैं तो रोज भगवान की शरण में जाइए, और जब आप भगवान की शरण में चले जाएंगे तब न कोई दुख है, न कोई परेशानी है, न सुख है। सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ आ जाए, आ जाए। लेकिन हम परेशान तो रहते ही, आज ये हो गया, कल ये हो गया, परसों क्या होगा नहीं मालूम। अरे हम चले जाएंगे तो क्या होगा, अरे भाई जब हम नहीं थे तब क्या हो रहा था। सब कुछ ऐसे ही चलेगा, ये भौतिक संसार है, चलेगा, पहले भी चलता है और आज भी चलेगा। हम यहाँ आए हैं भक्ति करने के लिए, हम आए हैं भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए, और अगर हम ये ना कर पाए तो जीवन का क्या फायदा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ना, यदि प्रभुपाद ना होते तबे की होते जीवन बहिते की से। अगर प्रभुपाद जी ना होते, इन संस्कृत वर्षों का उन्होंने ट्रांसलेटर न किया गया होता, तो हम क्या करते। तब तो मैं भागवतम देखने का मौका भी नहीं मिलता, और इस प्रकार हमारा जीवन क्या होता। मेहनत किसने की है? प्रभुपाद ने मेहनत की है, और हमें तो सिर्फ उसको अंगीकार करना है, पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना। सब कुछ करा कराया है, 6 गोस वृंदावन करा के चले गए हैं। हमें तो जैसे मालूम है ना, जैसे जंगल है, अगर किसी में रोड बना दिया तो आपको रोड पे चलना है, आपको जंगल काटने की आवश्यकता नहीं है, आपको रोड बनाने की आवश्यकता नहीं है, रोड बनी बनाई है, उस पर चलना है।
और अगर आप उसी रोड पे बराबर चले तो आप गंतव्य स्थान पे पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम भी वो रास्ता है हमारे कंक्रीट जंगल का। ये जो कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं ना, इसमें ये रास्ता है। अगर हम रास्ता पे चलेंगे तो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। करो तो सही, लोग जो भी करो अपने मान के लिए मत करना, अपनी ख्याति के लिए कुछ मत करना, करना है अपने प्रभु की सेवा लिए करना है। फिर हम कहेंगे जय भी दे राखे राम, से भी दे रहेंगे। और क्या वो सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, से विधि रही। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मुझे मौका देने के लिए, ताकि मैं भगवान या भगवान के भक्त के बारे में कुछ सोच सकूं, कुछ समझ कर सकूं, अपने वचन के द्वारा उन पुष्पों को उनको समर्पित कर सकूं। इसमें आपका योगदान भी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम टू ऑल वैष्णवास प्रभु जी। आज तो क्लास में सब कुछ बता